to converge or diverge incident ray is called as power. अभी आपके बैठे ना क्या ठीक है. The capacity of lens to converge or diverge incident ray Is called as power. is called as power of lens. The unit of power of lens is diopter. क्या है? Diopter. What is the unit of power? Which is denoted by capital D. Okay, so the power of lens is depend upon focal length. So power, next definition क्या है? Power is inverse of focal length. Power is Inverse of its focal length. power is inverse of its focal length. So P is equal to 1 upon focal length, that is 1 upon F. Okay, so it is F is expressed in meter and power is so power क्या होगा? डायरेक्टर एक्चुअली क्या होगा बेटा? देखो हम क्या लिखते हैं? P. P is equal to 1 upon N. The power is meter inverse. होना क्या चाहिए था पावर के यूनिट? मीटर इनवर्स. पर मीटर इनवर्स नहीं लिखते, इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? डायरेक्टर. तो व्हाट इज डायरेक्टर? डायरेक्टर इज मीटर इनवर्स. डायरेक्टर इज मीटर इनवर्स. प्लीज अच्छे से देखो. पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ किस में होता है? फोकल लेंथ. यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर. तो वैल्यूज पुट की तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन मीटर. तो यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स. लेकिन हम मीटर इनवर्स की जगह पे क्या लिखते हैं? तो डायरेक्टर एक्चुअली क्या है? मीटर इनवर्स. ओके. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. ओके, जैसे हमने देखा था कि जिसको नहीं किया दूर का और पास का दोनों नहीं दिखता, तो वो एक ही स्पेक्ट में दो लेंस लगाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. If two lenses with focal length f and f2 are kept in contact with each other, the combination as a effective focal length is given by. So combination of lenses. तो अगर दो लेंसेस अगर हम साथ में अटैच कर रहे हैं तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी? इफेक्टिव फोकल लेंथ इसको हम लिखते हैं कैपिटल स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1 upon f1 plus 1 upon f2. Okay, when two lenses having the focal length f1 and f2 are in contact with each other, तो दोनों कांटेक्ट में है तो इफेक्टिव फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल f इज इक्वल टू 1 upon f1 plus 1 upon f2. सो सबको फॉर्मूले समझ में आए? पहला फॉर्मूला क्या है? 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. दूसरा फॉर्मूला h2 upon h1 m is equal to h2 upon h1 और h2 upon h1 is equal to v upon u and then p is equal to 1 upon f. Effective focal length is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. ये सब क्लियर है? इसी फॉर्मूला पे अभी हमें क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ओके राइटर. नहीं सबका ही साथ इकडे करा. थोडा इकडे क्लासच्या बाहेर कोण मिळतं असतो. अरे इकडे इकडे ओढा आला होती.
एक दिन में ना अपने अपने लेके आप कॉपीज चेक कंप्लीट करो. एक दिन मैं सिर्फ चेकिंग लेने वाली हूँ. लाइट ऑफ करो ये वाला. हो गया. राइट टुडेज डेट. हो गया. Done everyone? Those completed, please look at the solved example. Given on page number 86. Okay? Okay, there's the one line is given on page number 85. If the power of two lenses are P1 and P2, then effective power of their combination is P equals to P1 and P2. Thus, when two lenses are kept touching each other, the power is the combined of lenses equal to sum of their individual powers. और एक फॉर्मूला लिख लो combined में. So, effective power is equal to effective power, that is P, equals to power of the two lenses. Okay, combined power of two lenses, that is P1 plus P2. Okay, now look at the solved example. An object is placed vertically at a distance of 20 centimeter from convex lens. बेटा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस. तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? Why minus 20? Because u is always negative. Okay. Next, if the height of object मतलब h1 या h2 is 5 centimeter and focal length of the lens is 10 centimeter. As it is convex, positive or negative? What will be the position, size and nature of image? How much bigger will be image as compared to object? That is, we also calculate the magnification. Okay. So
Solve examples. First, what is given? Height of object. U is given which is minus 20 सेंटीमीटर. Why माइनस? क्योंकि U is always माइनस. ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल लिखते हो, न्यूमेरिकल में साइन दी जाएंगी, वो आपको लिखना है. ओके, फोकल लेंथ एज द मिरर इज कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. ओके, देन हाइट इज ऑल्सो H1 is always positive, which is 5 centimeter. To find, what we have to find? First of all, we have to find height of the image, then Distance of position of image, nature of image, and मैग्निफिकेशन, मतलब कितनी बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, सो सॉल्यूशन. अभी हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास U है, F है, तो हम मिरर फॉर लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, क्या है लेंस फॉर्मूला? 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U माइनस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U. हमें V निकालना है, तो U इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. सो 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन U. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. 1 अपॉन V इज इक्वल टू F कितना है? 10 और U कितना है? ये प्लस माइनस माइनस. तो जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते. तो 10 को 20 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग. तो इट बिकम 2 अपॉन 20. हमने 2 से मल्टीप्लाई किया टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो क्या होगा? 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 20. बचा कितना है? 1 अपॉन 20. देयरफॉर इनवर्स करोगे तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? पॉजिटिव. U इज पॉजिटिव, मतलब V अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसी है? वर्चुअल है या रियल है? अरे V पॉजिटिव कब होता है? जब इमेज इधर के साइड में बनती है, मतलब रियल इमेज बन रही है. अभी हम निकालेंगे हाइट. हमने देखा था, अभी देखो H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V बाय U. यस, हमारे पास H2 नहीं है, H1 है जो है 5 सेंटीमीटर. V एंड U बोथ आर 20 सेंटीमीटर. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो H2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. यस, H2 कितना आया? समझा? ठीक है, दोनों भी 20-20 है, कैंसिल हो जाएंगे 1. सो 5 इंटू 1 इज 5. ओके, नाउ अभी हमें लिखना है मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? H2 अपॉन H1. ओके, तो ये कितना है? 5 और ये भी कितना है? तो इमेज कैसी है? यस, वेट, हमारा एक कोई हाइट निगेटिव है ना? हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा. ठीक है, क्योंकि U क्या है? निगेटिव. तो ये -5. सो ये माइनस साइन आएगी. सो माइनस साइन, सो नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट एंड द मैग्निफिकेशन सो दैट इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल. वही देखा हमने कि अपोजिट साइड में होगी और इन्वर्टेड होगी. सो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज V क्या आ रहा है? पॉजिटिव, बट H2 क्या आ रहा है? नेगेटिव, मतलब नीचे होगी इधर के साइड में और पॉजिटिव साइड में. तो इमेज इज कैसी होगी? इमेज इज रियल एंड मैग्नीफाइड बनेगी क्या? अरे मैग्नीफाइड बनेगी क्या? देखो, हाइट जितनी ऑब्जेक्ट की है उतनी इमेज की है. तो साइज ऑफ इमेज is same as that of
So magnification is not there. मैग्निफिकेशन इमेज मैग्नीफाइड नहीं हो रही है. जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट इमेज की है. देखो H1 भी 5 सेंटीमीटर था और H2 भी कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर. क्लियर एवरीवन? किसी को प्रॉब्लम है? गॉट इट? इजी है. फिर से एक बार देख लो क्या हो रहा है कि हमें एग्जाम्पल में दिया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो convex lens है and it is placed 20 centimeter from the convex lens. It means U is given. Focal length दी है 10 centimeter and height of the object is given 5 centimeter. So we know that U is always negative and H1 is always positive. Focal length of convex lens is also positive. Now हमें find क्या करना है? Height of the object, position of image. Okay, we also find out the V. Okay, then nature of image and magnification. Magnification मतलब image object से कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन रही है. So according to the lens formula, 1 upon f is equal to 1 upon u minus 1 upon v minus 1 upon u. हमें v निकालना है तो हमने u को यहाँ पे शिफ्ट किया तो फॉर्मूला क्या बना? 1 upon v is equal to 1 upon f plus 1 upon u. Now we will put the values here. So the f is 10 and v is minus 20. प्लस माइनस माइनस. जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. तो हमने 12 को 20 बनाया, मैं मल्टीप्लाई 2. सो 2 minus 1 upon 20 that is 1 upon 20. अगर इसको इनवर्स करोगे तो क्या आएगा? v is equal to plus 20. v पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इट इज ऑन अ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होती है. जब भी इमेज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में होती है वो रियल होती है. अभी देखना है कि वो इन्वर्टेड है या नहीं. इन्वर्टेड कैसे पता चलेगा? जब हम इमेज की हाइट बनाएंगे. सो फॉर्मूला क्या है? H2 upon H1 is equal to V by U. हमारे पास H1 की वैल्यू है 5 और दोनों भी क्या है 20, लेकिन U minus 20. तो हाइट क्या आ रही है? माइनस 5 मतलब नीचे की साइड में, मतलब हमारा इमेज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड. बाद में मैग्निफिकेशन निकालना था. क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का? H2 upon और V upon U. दोनों भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. तो दोनों भी कैंसिल हो रहा है. -1. ओके, -1 मतलब मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इमेज अपोजिट साइड में फॉर्म हो रही है टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड और उसका साइज कैसा है? सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि दोनों की हाइट सेम है. क्लियर? हु इज पार्ट? पार्ट कौन है? पार्ट पूरा लिखो फटाफट. आप कौन से स्कूल में? एटलीस्ट 6 बजे आने की कोशिश करो. हम अपने यहाँ पे गर्ल्स जो है वो बहुत दूर दूर रहती है और हम ज़्यादा देर तक एक्सटेंड नहीं कर सकते आपके बाद. वैसा तो लगता है आपके पास में इमेजिन करो कितना टाइम हो गया. हो गया तेरा सोनी? किसका हो गया? ऐसा किसने बोला? अभी हो गया तेरा लिख के. जब बता रही तो कभी लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए. ये तो देख कर लिखोगे. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम? इसीलिए पहले समझ लो बाद में लिखो. जाना है क्या हमें? मला थंडी नाही वाटत का?
हाँ बातें नहीं करना है, हो गया तो बताओ. वी विल टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम. और आप लोग क्या करते हो पेपर में, बहुत शॉर्टकट करते हो. और आंसर भी लिखना है. आंसर क्या लिखोगे, जो जो पूछा है, ठीक है. तो क्या लिखोगे, पहले क्या पूछा उन्होंने, द हाइट ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर. माइनस साइन देनी पड़ती है क्या, ठीक है. जैसे न्यूमेरिकल में साइन नहीं थे तो आंसर में भी साइन नहीं लिखना है. द हाइट ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर. देन The position. the image is real and inverted and size is as same as that of object. Write today's date. नंबर भी नहीं डाला तूने. देखो क्वेश्चन पीछे. अभी नेक्स्ट पेपर जब भी होगा, अभी मैथ्स का होगा, उसके बाद इंग्लिश देन आफ्टर साइंस, तो वो होगा आपका स्पेस मिशन पे. इस पे होगा एंड उसके बाद जब भी होगा उसमें वो 2 लेसन है ना, सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वो दोनों साथ में होगा पेपर 2 का. ओके. इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी. हाँ क्या हुआ, डन. सो लेट डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम. आयुष थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो, आपका ही नहीं होता, सबका हो जाता है. Okay, those have completed. Try for the next problem. It is very easy. The focal length of convex lens is 20. What is its power? क्या फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ ही है तो उसको वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर. चलो करो, वेरी इजी. हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, क्योंकि हमने क्या देखा है कि फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए. तब जाके आप मीटर इनवर्स को डालकर लिख सकते हो. तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो. अरे म्यूट करो प्लीज. हो गया. तो सॉल्व करो. गिवन क्या है, फोकल लेंथ विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, 100. So you have to divide it by 100. So answer will be 0.2. 0.2 meter. Okay. To find में क्या है, पावर. पावर इज इक्वल टू 1 upon F. अरे वो देख रहा है, नाम मेहनत करा हो गया. सॉल्व प्रॉब्लम सेकंड वाला तो दिखने का कर दो. नंबर नहीं हो रहा है. Okay. Now ध्यान दो. Example number, solve example number 2. It is very easy. Yes, focal length of convex lens is 20 centimeter and it is पॉजिटिव. कॉन्वेक्स है ना, इसलिए पॉजिटिव. सो गिवन फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. सो 20 डिवाइडेड बाय 1000 is equal to 0.2 meter because diameter is meter inverse. So we have to convert into meter. So to find, what we have to find? Power of lens.
So solution, क्या ये power is inverse of focal length. So power is equal to 1 upon f. So 1 upon 0.2. We will multiply it by 10 on the both sides, so it becomes 10. It becomes 2. So answer is 5 meter inverse. So जिसको हम लिख सकते 5 diameter. Is it easy? Answer क्या लिखोगे? The power of the lens is 5 diopter पूरा. DIOPTRE. डन. इतना सिंपल प्रॉब्लम भी आप देख देख के करते हो. हाँ, यहाँ पे लिखना मीटर इनवर्स इज इक्वल टू डायमीटर. अभी मैंने ये बताया नहीं होता तो आप क्या लिखते हैं डायरेक्टली? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दैट इज 1 अपॉन 0.2 इक्वल्स टू 5. बस खत्म आपका काम. और 2 मार्क हम कैसे देंगे आपको बताओ. अगर 2 मार्क का प्रॉब्लम है तो आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना भी पड़ेगा. इसीलिए गिवन, बेटा हर स्टेप पे मार्क्स होता है. जब गिवन है 2 पॉइंट लिखते हो आधा मार्क्स मिल जाता है, फॉर्मूले पे आधा मार्क्स मिलता है, आंसर पे आधा मार्क्स. तो बहुत बच्चे बोलते हैं हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया लेकिन मार्क्स नहीं मिले. ऐसे मार्क्स आपके कट होते रहते हैं. अभी तक फर्स्ट भी नहीं हुआ तेरा. बेटा ये बाकी के बच्चे आपके वजह से सफर कर रहे हैं, वो वाला सफर नहीं, ट्रैवलिंग वाला. SUFFER लिख जल्दी. ये 3 1 2 3 तू भी है उस कैटेगरी में. जिनका हो गया है लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8. सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स. एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 8. Doctor has prescribed a lens having power of positive 1.5 D. These words stand for diopter. What will be the focal length of the lens? What is the type of lens? And what must be the defect of VJ? तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है. पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. अभी आपको पावर दिया है, पावर से आप क्या निकालोगे? निकालोगे. हो गया है? तो बहुत इजी है तो कर लेगा आराम से. ओके नाउ नेक्स्ट डन लो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का 1. अभी इस प्रॉब्लम पे ध्यान दो. सो डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब. व्हाट इज गिवन? आयुष ध्यान इधर. पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव 1.5 D. बेटा पॉजिटिव साइन दिया हुआ है मतलब लेंस कौन सी होगी? अगर कॉन्केव होती तो नेगेटिव. ओके तो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ, देन टाइप ऑफ लेंस and defect in image. So हमारा
इफेक्ट ऑफ फ्रीजन होने का, लेकिन मैं आपको बता दूंगी क्या है. सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. सो P इज इक्वल टू 1/f. तो f की जगह पे p की जगह पे, सो f इज इक्वल टू 1/p. दैट इज 1/1.5. ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 on both the side, 10/15. 2s are, तो आंसर इज 1.5 मीटर. हम मीटर में लिखते हैं क्या? अरे फोकल लेंथ कितना है? 1.5 मीटर. सो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग 100. सो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर. ये 0.67 कैसे आया? नहीं, बराबर है. 0 ऊपर 3/2 का कैंसर लिख के रखा है हमने. अब बोलो तो कितना आएगा? 0 जा, देन 6 18 जा, 6 6 6 6 रिगाकर होंगे. दैट इज 6.7. इट इज इन अ मीटर. Now we have to convert into centimeter. So multiplied by, so answer is 6.7 centimeter. So positive है या negative है? Focal length किसकी positive होती है? So focal length is positive for convex lens. ओके, अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस दिखा है. कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. इसका मतलब उस पर्सन को कहाँ का नहीं दिख रहा है? दूर का या पास का? दूर का, पास का नहीं दिख रहा है. नहीं रे, दूर का नहीं दिखेगा ना. फार साइडनेस क्या होगा उसको? दूर का नहीं दिखेगा. सो टाइप ऑफ लेंस कौन सी हो जाएगी? कॉन्वेक्स लेंस. एंड डिफेक्टिंग विजन क्या हो जाएगा? फार साइडनेस. अभी ये फार साइडेडनेस क्या होता है वो बाद में देखेंगे. जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं. इसमें देखिए 25 सेंटीमीटर के रेंज का नहीं दिखता. तो ये दूर, एक्चुअली पास का ही नहीं दिखता, दूर का दिखता है अच्छे से. जो हमारे 25 सेंटीमीटर के अंदर के दायरे में होता है वो हमें नहीं दिखता क्लियरली. क्लियर? तो यहाँ पे इस डिसीज में क्या होता है कि जो आपके आंखों के, मतलब आपके आंखों से 25 सेंटीमीटर में जो भी होगा वो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, दूर का पूरा दिखेगा. फार साइडनेस मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है. ठीक है, हो गया. अभी नेक्स्ट देखो, बाद में करना, बाद में लिखना. 5 centimeter high object is placed at a distance of 25 centimeter from converging lens. Which one is the converging lens? Convex is the converging lens and concave is the diverging lens. of focal length 10 centimeter. Determine the position, size and type of the image. Okay, तो 5 centimeter high मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 centimeter. और कितने दूर है वो? 25 centimeter. So what is this is the question number 2 given. तो क्या आपको गिवन दे दिया तो आप लोग कर सकते हो. H1 is 5 and H1 is always the distance of object, that is U is 25 centimeter. U is always negative. then focal length कितना है? कौन सी लेंस है? कॉन्वर्जिंग. कॉन्वर्जिंग है मतलब ये कॉन्वर्जिंग है मतलब कौन सी लेंस है? सो टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है? दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड
type of image. साइज ऑफ इमेज, देन नेचर ऑफ इमेज मतलब टाइप ऑफ इमेज. क्लियर? जमेगा? देखो आपके पास u भी है और f भी है, तो you have to use the lens formula. 1 upon f is equal to 1 upon u minus 1 upon v minus 1 upon u. आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ v. देन v इसके वैल्यू से आप निकालोगे h2. v अगर पॉजिटिव है तो रियल है, v अगर निगेटिव है तो वर्चुअल है. ओके, अगर h2 पॉजिटिव है तो इरेक्ट है, अगर h2 निगेटिव है तो इन्वर्टेड है. अगर h2 is greater than h1 तो it is a larger than the object. अगर h2 is smaller than h1 then it is smaller than the object. Clear? जमेल? देखो अभी ट्राई करो और दिखाओ मुझे. क्या करोगे? ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना, पेज को दो भागों में डिवाइड कर देना. ठीक है, क्योंकि आपकी इधर बहुत जगह नहीं क्या बचती है. डिवाइड द पेज इनटू 2 पार्ट. एक साइड में मतलब दो पेज आपका यूज हो जाए. जैसे इतना देखो पूरा खाली है, लिख सकते हो इधर. इजी है? यस, इज द लेसन इज इजी. Yes. जिनका हो जाए वो दिखाने के लिए लाओ. डन. बातें नहीं चाहिए मुझे. जिनका हो गया वो दिखाओ. जो दिखाएगा नहीं उसको कल क्लास में नहीं आने दो. चलो दिखाओ जल्दी फटाफट. इजी है ना? जो हमने सॉल्व एग्जाम्पल 1 किया था सेम वैसा ही है. जो ऐसे अपने आता 10 और 25 में तो कॉमन है. 5 से क्या
भूल गए? यस अभी बेटा आप लोगों को एक कॉमन फैक्टर एचसीएफ आता है ना, एलसीएम, जीसीडी, ग्रेटर कॉमन डिविजन। तो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर आपको देखना है, एक होगा 1/10 और एक होगा 1/-25। तो 10 और 25 को कैसे इक्वलाइज करोगे? दोनों के टेबल में क्या करना, अगर नहीं आता तो दोनों का टेबल लिखना, ठीक है? जो भी दो टेबल और जिनमें दोनों टेबल में जो भी कॉमन, पहला जो कॉमन टर्म होगा दैट विल बी योर कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इज 50, क्योंकि 25 के टेबल में 50 आता है और 10 के टेबल पे भी 50 आता है। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको 10 को 50 बनाना है, 25 को 50 बनाना है। 10 को 50 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 को 50 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा ये हो गया आयुष? हो गया क्या? स्ट्रेंज आज हो गया तेरा? So, according to Lenz's formula, क्या होगा? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Therefore, 1/v is equal to 1/f plus 1/u. Put the value 1/v is equal to 1/f। ये पॉजिटिव प्लस होगा बेटा, आपका माइनस कैसा है? अच्छा यहाँ पे माइनस की साइन है तो इधर जाके माइनस, क्योंकि एफ कितना है 10, यू कितना है 25। दोनों डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर दैट इज 50। तो ये 5 जा और ये 2 जा, ठीक है? तो दोनों कॉमन फैक्टर है, 5 minus 2, so 1/v is equal to 3/50. Therefore v is equal to, मैम आपका गलत हुआ है, 1/v minus 1/u चाहिए इस साइड में, 1/f is equal to। हाँ यस, यहाँ पे अपना माइनस है ना, ये -25 है। नहीं मैम, फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v। 1/f is equal to minus 1/, वो लेंस एंड मिरर दोनों मिक्स होता है। हाँ यहाँ पे प्लस चाहिए। ये इसने, मैंने प्लस ही करा। सो ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, अभी बराबर है ना? ओके, सो 1/v is equal to 3/50, therefore v is equal to 50/3। एक्चुअली मिरर फॉर्मूला भी है, मिरर फॉर्मूला में प्लस है, ओके? सेम फॉर्मूला इज फॉर मिरर एंड द लेंस, 9th में वो शुरू है, ओके? अभी 50 डिवाइडेड बाय 3, 1, देन 6 आएगा, फिर बचे 2, देन अगेन 6, 7, 6 6 आकर होंगे। It is in a centimeter, okay, and it is found to be positive। पॉजिटिव है मतलब हमारी इमेज राइट हैंड साइड है, मतलब रियल है। नाउ हमें निकालना है H1, so H2 is equal to H2 upon H1 is equal to V upon U। So put the value H2, H1 कितना है 5, it is always positive। V कितना है 16.67 और ये कितना है -25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, therefore H2 is equal to -25 is equal to 6.67 multiplied by 5। Therefore H2 is equal to 16.67 into 5 divided by -25। 5 1 जा 5 5 जा। नाउ डिवाइड करो, माइनस साइन आएगी क्योंकि ये माइनस है। 5 3 जा 15, एक बच्चा अगेन 5 3 जा 15, देन 5 1 जा, देन 5 4 जा 20। इतना ही है। हाँ 1 5 3 जा 15 आएगा ना, क्या आया ना 3.314।
यस यहाँ पे 3.3, ठीक है, माइनस साइन है, माइनस साइन है मतलब इन्वर्टेड है क्या, रियल इरेक्ट है, नीचे की साइड में मतलब इन्वर्टेड है. सो नेचर ऑफ इमेज दैट इज टाइप ऑफ इमेज. कैसे टाइप की इमेज बनेगी? यस, रियल एंड इन्वर्टेड. अभी H1 H2 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो क्या होगी साइज ऑफ इमेज? डिमिनिश्ड. ये वर्ड आया था कि डिमिनिश्ड हमारे इसमें, इस बार नहीं है ना, लास्ट टाइम था. तो क्या लिखोगे? स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट. ओके. किसी को प्रॉब्लम है इसमें? सो प्लीज, क्योंकि आपको मिरर एंड लेंस में तो थोड़ा कंफ्यूजन है फोकल लेंथ में. यहाँ पे याद रखना 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u. ठीक है, मिरर में पॉजिटिव है, लेंस में निगेटिव है. आई ऑल्सो गेट कंफ्यूज समटाइम बिकॉज बोथ फॉर्मूला आर सेम. इसकी टेक्स्ट बुक है, बाकी का 2 प्रॉब्लम बचे हैं, आई थिंक 3 है, 2 ही है. ओके, सो कल हम स्ट्रक्चर ऑफ आई देखेंगे.